always very difficult to conduct, even from uh, the resource person viewpoint and at the same time from participants' viewpoint, because post lunch some lethargy creeps up usually, and it becomes very difficult to comprehend the things. But still, the show must go on. We'll continue with our discussions. Yesterday, we were having discussions on a couple of topics from unit number 3. And now we are continuing with our discussions on questionnaire design. Yesterday, we dealt with primary and secondary data. We had a contrast between primary and secondary data. We discussed the differences between primary and secondary data. Importantly, we had discussions on the major sources of collecting secondary data, specifically how to conduct literature review using Google Scholar. I demonstrated you yesterday. And in line with that, the next topic we discussed yesterday, that was questionnaire and schedule. We also discussed what is a questionnaire and what is a schedule, and importantly, both these documents, which are considered as your survey forms, are typically used in survey-based research projects. And we started our discussions on guidelines or the steps to be followed while preparing questionnaire. And now I'm continuing from here. स्टेप 1 हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे, एट द आउटसेट वी नीड टू एसेस आवर डेटा रिक्वायरमेंट्स। और डेटा रिक्वायरमेंट जब तक पता नहीं चलती है तो क्वेश्चनर ठीक से बनेगा नहीं। अगर बन भी गया तो भी वो गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चनर में कि जो अननेसेसरी है, और कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे बहुत, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों को डेटा असेसमेंट, डेटा रिक्वायरमेंट, ये असेसमेंट करनी होती है कि हमारे प्रोजेक्ट की नीड्स क्या है, व्हाट डेटा वी रिक्वायर एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, इन व्हाट सेंस वी रिक्वायर डेटा। और उसके लिए हमारे पास जो क्या बोलते हैं, जो क्लूज है जहाँ से हमको डेटा रिक्वायरमेंट पता चलेगा, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। क्योंकि पूरा हमारा एनालिसिस जो है वो ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस के इर्द गिर्द घूमता है, यानी पूरा का पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट ही रादर ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस के इर्द गिर्द घूमता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस, ऑब्वियसली टाइटल, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा डेटा रिक्वायरमेंट का असेसमेंट करते हैं। और उसमें ये मैंने कुछ शेयर किया था कल आपके साथ कि यू नीड टू बिगिन विथ एंड इन माइंड। once your ideas regarding analysis or the tools that you are going to use and the techniques that you are going to follow while analyzing your data, and importantly while satisfying your objectives and hypothesis and testing your hypothesis statements, once your ideas are clear regarding this, so automatically the research journey becomes more meaningful and enjoyable. And incidentally, it has been observed that research scholars usually collect data and then they think over how to process this data. And my message to you was, firstly, you work out the analytical techniques, and accordingly, you work out on the data collection, designing your data collection instrument, that is questionnaire, and it becomes more logical. Because if you are following these tips, automatically your questionnaire will become flawless, and it will be very precise and to the point, and at the same time it will help you in satisfying your objectives and testing your hypothesis. So with regard to this, हम लोग कल बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में से हम लोगों को वेरिएबल्स एसेस करने होते हैं, जो हमको बताएंगे कि हम लोगों को कौन से डेटा की ज़रूरत है, कौन से सेंस में डेटा की ज़रूरत है। एंड विथ रिगार्ड टू दिस, 4 टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें पहली टर्मिनोलॉजी है वेरिएबल, जो हम लोग कल भी बात कर रहे थे। Variable is a characteristic or a phenomena which keeps on changing with reference to some context. And that context may be individual, that context may be time, that context may be place, that context may be organizations, or whatever the nature or the context of your own research study. You need to take into consideration ki what is changing with a given context, and accordingly you need to work out your variables. और इसको लेके हमारी बात ऑलरेडी कल हो चुकी थी। अभी मैं सेकंड फिनोमेना बता रहा हूँ डेटा रिक्वायरमेंट का असेसमेंट करते वक्त, वो है एट्रीब्यूट। जैसे हम लोगों को हमारे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, वैसे ही एट्रीब्यूट्स भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करने होते हैं। इसके लिए कुछ सिनोनिमस टर्मिनोलॉजीज है। एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली,
and variable is generally quantitatively expressed characteristic. यानी मैं हाइट, वेट, इनकम, सेविंग्स, क्रॉप यील्ड की जो कल बात कर रहा था, ये सब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो रहा है। मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आपका मंथली इनकम कितना है, तो ऑब्वियसली जवाब नंबर में आएगा। मैं आपको पूछता हूँ आपका वेट कितना है, आप महीने में कितना सेविंग कर लेते हो, आप महीने में कितना खर्चा करते हो रेस्टोरेंट पे में ईट आउट करने में, तो ये सब जो जवाब आ रहे हैं ये नंबर्स में आ रहे हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक का डेटा नंबर में एक्सप्रेस होगा उसको हम वेरिएबल कहते हैं। पर सभी वेरिएबल का डेटा जरूरी नहीं कि वो नंबर में ही आएगा। तो कुछ डेटा क्वालिटेटिव सेंस में भी आ जाता है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज योर जेंडर, तो यहाँ आप मुझे बोलोगे एक तो मेल या फिर फीमेल। तो यहाँ पे डेटा तो आया है, पर ये क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस है या कैटेगोरिकली एक्सप्रेस्ड है। तो जेंडर इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस्ड, विच इज कंसिडर्ड एज ए कैटेगोरिकल वेरिएबल। और इस पर्टिकुलर सेंस में जो क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, या फिर इनको हम आइटम्स कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं बहुत बार, जो खास करके लिकट के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या है इंडिकेटर्स, बोलिए इसको, या स्टेटमेंट्स इनको कहा जा सकता है। तो जैसे मैं बता रहा था, इसे कैरेक्टरिस्टिक और अ फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन और इशू which is qualitatively expressed or categorically expressed. For example, gender, education, marital status, all these are qualitatively expressed characteristics. Then the next term in line is your factor. So factor is basically a group of attributes. Factor is a group of attributes. मैं समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल देखें। आपने शायद लिकर्ट स्केल के बारे में सुना होगा। ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको मेजर करने के लिए जनरली लिकर्ट स्केल यूज की जाती है। और जहाँ कहीं भी साइकोलॉजिकल बिहेवियरल स्टडीज होती है वहाँ पे लिकर्ट स्केल प्रीडोमिनेंटली यूज होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर एटीट्यूड हम लोगों को मेजर करना है। ओके, या फिर अवेयरनेस हो, लॉयल्टी हो, परसेप्शन हो, अवेयरनेस हो, ये कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियरल ट्रेट्स हम लोग जिसको कहते हैं। तो इनको मेजर करते वक्त जनरली हम इस प्रकार का क्वेश्चनर तैयार करते हैं। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे इस तरफ आते हैं आपके स्टेटमेंट्स, एक एक करके आप विधान पूछते हो और इस विधान को लेके आपके रेस्पोंडेंट्स का एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का एक्सटेंट या लेवल कितना है वो हम पूछते हैं। जैसे इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, जिसको हम कहते हैं 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। गेटिंग मी? तो अभी आप जैसे देख रहे हो कि एटीट्यूड मेजर करने के लिए यहाँ मैं 7 स्टेटमेंट्स, ये 7 स्टेटमेंट्स को यूज कर रहा हूँ। ये सातों क्वेश्चन या सातों स्टेटमेंट्स मिलके एक ही चीज मेजर कर रहे हैं, वो है एटीट्यूड। यानी क्या, ये एटीट्यूड के अलग अलग फैसेट्स हैं। वो फैसेट्स को कंबाइन करके मैंने कुछ स्टेटमेंट्स बना लिए एक एक करके, और उसको उसका एक ग्रुप बना लिया। एंड दिस ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स और दिस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, इसी को हम कहते हैं फैक्टर। सो व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर इज अ ग्रुप ऑफ Factor is a group of variables or attributes which are closely related to one another. Means what? Closely related यानी क्या? ये सब मिलके एक ही चीज मेजर कर रहे हैं। ये 7 चीजें मिलके एक ही चीज मेजर कर रहे हैं जो है एटीट्यूड। एंड अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्टेटमेंट्स which are defining or measuring a same thing, that is what is called as a factor. So consumer attitude in this particular sense can be considered as one of the factors. Then we usually talk about construct. इसमें हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की बात होती है या फिर सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की बात होती है। ये एक्चुअली मेजरमेंट एंड स्केलिंग नाम से पूरा एक डिसिप्लिन है या पूरा एक टॉपिक है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जो जिसके इनपुट्स में ये सब जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव सा है, इसमें आपने शायद अभी तक आपका आखिरी के सेशन चल रहे हैं शायद वर्कशॉप के,
तो आपने इससे पहले भी कहीं ना कहीं चर्चा तो हुई होगी कि नॉमिनल स्केल होती है, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल का डेटा होता है। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है ये जाते हैं मेजरमेंट एंड स्केलिंग, जो क्वेश्चनर डिजाइनिंग का एक वन ऑफ द इनपुट्स कहा जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेंस में हम लोगों को कंस्ट्रक्ट्स पे वर्कआउट करना होता है। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्ट? कंस्ट्रक्ट इज अ कंपोजिट टर्म। कंस्ट्रक्ट इज अ कंपोजिट टर्म, ये एक बड़ी टर्म है जो बहुत सारी चीजों से बनी हुई है। जैसे कल भी हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, कोई इकोनॉमिक्स का है शायद। तो इकोनॉमिक्स में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपको मेजर करना है। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। सो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंस्ट्रक्ट। और ये पीएचडी का ही टाइटल में ही जनरली एक बड़ी टर्म, जो हम लोग कल वर्कआउट कर रहे थे, देखो मैं आपको बता रहा था कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए। उसमें हम लोग जो वेरिएबल बोल रहे थे ना, अभी आपको समझ में आया वेरिएबल वो वेरिएबल नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्ट होता है। पर आपको समझे इसलिए मैं कल आपको वो टर्मिनोलॉजीज में बात कर रहा था। और आज हम लोग किसी और सेंस में बात कर रहे हैं। वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इनकम, हाइट, वेट। और कंस्ट्रक्ट जो है ये कंपोजिट टर्म है, विच इज मेड ऑफ सेवरल वेरिएबल्स यू कैन से, और सेवरल एट्रीब्यूट्स यू कैन से। जैसे फीडबैक, जैसे फैकल्टी फीडबैक या आज के मेरे सेशन का फीडबैक की अगर बात करते हैं, तो फीडबैक कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंपोजिट टर्म, फैकल्टी फीडबैक। बिकॉज फीडबैक इज मेड अप ऑफ सेवरल थिंग्स ना, कि रिसोर्स पर्सन का नॉलेज लेवल कैसा था, इसके ऊपर रेटिंग आप देंगे। इन टर्म्स ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की क्वालिटी कैसे थी रिसोर्स पर्सन की, इसको लेके आप कुछ रेटिंग करेंगे। या फिर स्टडी मटेरियल जो रिसर्च पर्सन प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्वालिटी को लेके इसके ऊपर कुछ आप रेटिंग करेंगे। उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को आपके कैसे डील कर रहा हूँ, क्या मैं आपकी क्वेरी सेटिस्फाई कर रहा हूँ, इसको लेके भी आप इसमें रेटिंग देंगे। या फिर मेरी पंक्चुअलिटी, कि मैं समय पे लेक्चर शुरू कर रहा हूँ और समय पे ही खत्म कर रहा हूँ क्या, ये मेरे लेक्चर का वन ऑफ द एट्रीब्यूट है। गेट मी? और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो एक ही चीज डिफाइन करेंगे, वो होगा कि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। तो ये सब जो है, दीज आर एट्रीब्यूट जिसके ऊपर आप रेटिंग करने वाले हो, 1 to 10, 1 to 5, जो भी आपको दिया जाएगा स्केल। और ये सब मिलके एक ही चीज मेजर कर रहे हैं, वो है फीडबैक। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। अभी फैक्टर में भी तो वही बात हो रही थी। फिर सवाल ये उठता है कि फैक्टर और कंस्ट्रक्ट में फिर फर्क क्या है, समझा देता हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्ट सबसे बड़ी चीज जो हम मेजर करते हैं, और ये टाइटल में, पीएचडी के टाइटल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्ट से निकलते हैं बहुत सारे फैक्टर्स। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, लाइकवाइज। ओके। और हर फैक्टर के फिर निकलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल वेरिएबल्स, जिसको मैं कह रहा हूँ V1, V2, V3, V4, V5। लाइकवाइज सभी के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। गेट मी? मीन्स व्हाट? फैक्टर is a group of several variables या items, and construct is a group of several factors. एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा, जो मुझे अभी स्ट्राइक हो रहा है। सपोज जैसे मैं अभी ये पेपर पे काम भी कर रहा हूँ, 2-4 पेपर लिख रहा हूँ एक ही थीम पे, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर पे फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर लॉयल्टी, कंज्यूमर मोटिवेशन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस,
कस्टमर सेफ्टी इन ऑनलाइन शॉपिंग, कस्टमर इंटेंशन, परचेस इंटेंशन जिसको कहते हैं, कस्टमर परचेस इंटेंशन। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसमें लगभग एक 30 से 40 चीजें आती हैं। यानी क्या, अभी ये हो गया हमारा एक बड़ी चीज जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। और ये कंस्ट्रक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज है जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स, F1 F2 F3। कंज्यूमर एटीट्यूड मुझे मेजर करना, अभी तो मैंने आपको एक जस्ट स्केल दिखाई ना, कि जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ V1, V2, V3, V4 अप टू V7। वैसे हर एक में ऐसे अलग सारे बहुत सारे V1 V2 बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे। गॉट इट? So you need to work out on this particular thing, कि how many constructs you are dealing with, then how many factors you will be addressing under each particular construct, and each construct is made up of how many variables। ये जब तक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा नहीं, मुझे बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा? नो वे। जो आपको ये टर्मिनोलॉजीज तो मालूम होनी चाहिए ना, कि कंस्ट्रक्ट्स कितने हैं, कौन से हैं, उसमें फैक्टर्स कितने हैं, कौन से हैं, और हर फैक्टर में कितने वेरिएबल्स या आइटम्स आते हैं और वो कौन से होने चाहिए। ये जिसको पता है वही क्वेश्चन बना पाएगा। इट इज सो सिंपल। जिसको ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं मालूम, आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे मेरे पास इतने सारे क्वेश्चनर्स आते हैं करेक्शन के लिए और रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए, उसमें पता चलता है कि नहीं मालूम रहता। नहीं मालूम कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं मालूम वो प्रॉब्लम नहीं है। मालूम नहीं है, मालूम नहीं करना दैट इज द प्रॉब्लम। गेटिंग मी? पर जनरली जनरली ये क्या है, हमारा एजुकेशन तो हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, हमारा B+ है, एलिजिबल हो गए पीएचडी करने के लिए, पर सम हो क्या है, हमारे एकेडमिक में ये पार्ट इतनी डिटेल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसलिए पीएचडी करते वक्त थोड़ा सा और ट्रेनिंग मुझे लगता है जरूरी है। और मुझे क्या लगता है, बार बार पीएचडी करने से पहले आपके मन में जो भी टॉपिक चल रहा है ना, उसको लेके आपने एक दो चार पेपर, रिसर्च पेपर्स तो भी तैयार कर लेने चाहिए। यानी क्या, उसको लेके आइडियाज क्लियर हो जाती है। जो टॉपिक मन में चल रहा है ना, उसका फाइन ट्यूनिंग जो है ना, वो अच्छे से हो जाता है, तैयारी अच्छी हो जाती है, फिजिबिलिटी पता चल जाती है। गलतियां करनी है, आप रिसर्च पेपर में करो जितनी गलतियां करनी है, क्योंकि रिसर्च पेपर आप अपनी लाइफ टाइम में 1000 पेपर भी लिख सकते हो, उसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। और 1000 बार पीएचडी थोड़ी ना करते हैं, पीएचडी तो एक ही बार करेंगे। तो गलतियां जो है वो रिसर्च पेपर में कर लीजिए। और मुझे लगता है पीएचडी करने से पहले रिसर्च पेपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको पढ़ने का, सीखने का, समझने का, चीजों को ये मौका मिल जाता है। चलिए पार्ट अपार्ट मुद्दे पे आते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन कैसे तैयार करते हैं उसकी स्टेप्स देख रहे हैं। तो मैंने बताया आपको ये टर्मिनोलॉजीज मालूम होना जरूरी है आपको क्वेश्चन बनाने से पहले। मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। कंस्ट्रक्ट्स यानी क्या? कंस्ट्रक्ट्स में दो चीजें जनरली रिफ्लेक्ट होती हैं, एक जो होते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा होता है वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बायर प्रेफरेंसेस, एम्प्लॉयज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, कंपनीज एचआर पॉलिसीज, वर्किंग वुमेन्स वर्क लाइफ बैलेंस, कंज्यूमर्स परसेप्शन, एम्प्लॉयज मोटिवेशनल, कंपनीज वर्क एनवायरमेंट, एम्प्लॉयज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दो चीजें मिलके एक चीज बड़ी बनती है जिसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं जनरली। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कंस्ट्रक्ट्स के जो जनरली बिहेवियरल स्टडीज में या सोशल साइंसेस, कॉमर्स मैनेजमेंट, जहाँ कहीं भी सर्वे किए जाते हैं ना, वहाँ पे मोस्टली ये कुछ कॉमनली यूज कंस्ट्रक्ट्स आपको दिखते ही है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो, या फिर इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू की बात होती है, या सेल्फ एस्टीम की हम बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस, एटीट्यूड, अवेयरनेस, नॉलेज, वर्क कल्चर, परसेप्शन, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन। ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जो जनरली मेजर की जाती है, और इन सबको ही हम कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। कंस्ट्रक्ट की और एक डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ। एक तो एक एस्पेक्ट तो पता चल गया कंस्ट्रक्ट का, कि कंस्ट्रक्ट इज ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स या ग्रुप ऑफ वेरिएबल। दूसरी एक चीज जो है जो कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करती है, कंस्ट्रक्ट जो है ना, ये इनडायरेक्टली मेजर्ड चीजें होती है। इसका जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट किया जाता है। अभी इनडायरेक्ट मेजरमेंट यानी क्या? इनडायरेक्ट का मतलब है दो चीजें हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज योर वेट,
ओके। तो ऑब्वियसली आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएंगे, उसमें जो आंकड़ा दिखेगा वो पढ़ के आप मुझे बता देंगे कि सर मेरा वेट 57 किलो है। डायरेक्ट मेजरमेंट होगी। ये डायरेक्ट क्यों होगी? क्योंकि जो वेरिएबल को मेजर करना है उसको, वो वेरिएबल को मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, और वो यूज करके आप मेजरमेंट ले रहे हैं। जैसे मैं आपको पूछता हूँ आपकी हाइट कितनी है, डायरेक्ट मेजरमेंट है। आप सीधा टेप पट्टी लगा लीजिए, मीटर पट्टी लगा लीजिए, और आपको आपकी हाइट पता चल जाएगी। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका मंथली इनकम कितना है, तो क्या सोचते रहेंगे क्या कि कितना इनकम है? सैलरी स्लिप है ना, उस पर लिखा हुआ है कितना है, आप बता देंगे सीधा। ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। अगर मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्री पीएचडी कोर्स वर्क, आप बता पाएंगे मेरा एटीट्यूड इतना है? कोई आंकड़ा बताएंगे कि मेरा एटीट्यूड 12 है? ऐसा नहीं होता। इसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहता है कि ये सवाल का जवाब डायरेक्टली देना मुश्किल है, इनको इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। जैसे मेरा फीडबैक, आपको रेटिंग करना होगा ना कि व्हाट इज योर फीडबैक, अच्छा बुरा, दैट इज ओके। और उसको मेजर अगर करना है क्वांटिटेटिवली, तो हम लोगों को इनडायरेक्टली ये मेजर करना होता है। जैसे एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि नागपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर जो है, इनका स्ट्रेस लेवल क्या है, यानी नहीं? तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज योर स्ट्रेस लेवल। आप भी बोलेंगे सर ये क्या सवाल हो गया, व्हाट इज स्ट्रेस लेवल, यानी नहीं? वो स्ट्रेस मेजर करने के लिए स्ट्रेस के जो इंडिकेटर्स है, कि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है क्या, आपको रात को नींद नहीं आती है क्या, ऐसे कुछ स्ट्रेस के इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो मैं यूज करूंगा, और उसकी सहायता से उसको आपको मैं बोलूंगा कि रेट करिए आप, या फिर आप एग्री है डिसएग्री है ये बताइए इस स्टेटमेंट को लेके, उसको जाके फिर मैं कोडिंग करके आपका स्कोर निकाल लूंगा। इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सो कंस्ट्रक्ट का दूसरा एंगल है, इनको इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है, और इसको हम मेजर करने के लिए स्केल्स तैयार करते हैं। स्केल है ना आपकी भाषा में क्वेश्चनर। अभी जो मैंने एटीट्यूड का दिखाया था ना, सात स्टेटमेंट वाला, ऐसा एक डब्बा दिखाया था आपकी बॉक्स, यहाँ पे स्टेटमेंट्स थे सात, और यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री वगैरह, इसको हम कहते हैं स्केल, एटीट्यूड की स्केल। और इसी को हम बहुत बार इन्वेंटरी कहा जाता है, या इसी को हम लोग टेस्ट भी कहते हैं बहुत बार। थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है स्केल, इन्वेंटरी और टेस्ट में। ये साइकोलॉजिकली इसमें थोड़ा सा थीन लाइन ऑफ डिफरेंसेस है, पर उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये है वैसे बड़ा टॉपिक क्वेश्चन डिजाइनिंग का, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बतानी चाहिए उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो वेरिएबल के बारे में आपको पता चल गया कि वेरिएबल डायरेक्ट मेजर्ड होते हैं, और आपके जो कंस्ट्रक्ट्स है वो इनडायरेक्टली मेजर्ड होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कम्युनिकेशन स्किल मुझे आपकी मेजर करनी है सपोज, या कोई स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट जो हुए हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल मुझे चेक करना है। तो कम्युनिकेशन में तीन चीजें आएगी ना, एक मैं उनका वोकेबलरी देखूंगा, उनका सिंटैक्स यानी ड्राफ्टिंग स्किल देखूंगा, और उनका स्पेलिंग। ये तीन चीजों मैं चेक करूंगा इंग्लिश को लेके, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ओके। तो यहाँ पे आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन स्किल ये कंस्ट्रक्ट हो गया, वोकेबलरी, सिंटैक्स और स्पेलिंग, ये तीन चीजें फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री हो गए। तो वोकेबलरी चेक करने के लिए मैं एक अलग स्केल बना लूंगा, या कोई टेस्ट मुझे लेनी होगी ना, कि मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स दे रहा हूँ, उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ, या फिर सिनोनिम एंटोनिम एमसीक्यू टाइप में पूछ रहा हूँ, इसके लिए मुझे एक टेस्ट बनानी होगी 50 मार्क्स 100 मार्क की। ड्राफ्टिंग के स्किल, मुझे आपको कोई एक थीम देनी होगी आपके रेस्पोंडेंट को, उनको बोलूंगा कि आप आपके सामने जो एक पिक्चर दिखाया गया है इसको नरेट करिए आप इंग्लिश में। पर मैं स्पेलिंग के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करूंगा, यानी क्या हर फैक्टर को मेजर करने के लिए मुझे कुछ अलग एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, और ये तीनों चीजें मिला के मैं एक ही चीज मेजर कर रहा हूँ, बड़ी चीज जो है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको मैं कर रहा हूँ कंस्ट्रक्ट। गॉट इट? एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर इनडायरेक्ट मेजरमेंट, एंड कंस्ट्रक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। अभी पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त भी थोड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्ट पीएचडी के टाइटल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी मैं एक सेंटर पे वाइवा ले रहा था, ये सिनॉप्सिस के सबमिशन के चल रहे हैं ना अभी नागपुर यूनिवर्सिटी के, एक सेंटर पे मैं अभी वाइवा ले रहा था। तो अनुभव आया मुझे, और पता चलता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है। एक बंदा मुझे वेगली याद आ रहा है कि एक बंदे ने टाइटल में क्या टू स्टडी, ऐसा कुछ, टू स्टडी अवेयरनेस ऑफ, ऐसा कुछ लिया था। ये पीएचडी का टाइटल नहीं हो सकता है, अवेयरनेस तो ये फैक्टर हो गया है ना। आपको बड़ी चीज लेनी चाहिए, सिर्फ अवेयरनेस पे थोड़ी ना आप 8 से 10 ऑब्जेक्टिव लिख पाओगे, अवेयरनेस को एक ही ऑब्जेक्टिव बनेगा।
एक ही हाइपोथेसिस बनेगा। तो आपका टाइटल में कंस्ट्रक्ट जो है वो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जिससे कम से कम 4 से 5 फैक्टर्स निकल पाएँ और उसमें से फिर आपका क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स डिराइव होंगे और ऑब्वियसली आपके मल्टीपल हाइपोथेसिस तैयार हो जाएँगे, तब जाके तो 250-300 पेजेस का प्रोजेक्ट बनेगा ना। सिर्फ अवेयरनेस निकालना, इवन रिसर्च पेपर भी नहीं बनता है सिर्फ अवेयरनेस पे, तो यानी क्या सिंगल फैक्टर हो गया ना, अवेयरनेस के साथ फिर और कुछ तो भी चाहिए। तो ये कुछ गलतियाँ जनरली होती है और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा प्रिपरेशन की ज़रूरत है पीएचडी का प्रोजेक्ट करने से पहले। चलिए, मैं जैसे बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ कि आपके पीएचडी का टाइटल ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि क जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि हम लोगों को रिसर्च पेपर्स तैयार करने होते हैं हमारे पीएचडी टॉपिक से मिलते-जुलते। तो उसको लेके भी एक डायरेक्शन हमारे नोटिफ़िकेशन में ऐसा लिखा है कि आपको आपके पीएचडी के टॉपिक से मिलते-जुलते टॉपिक पे रिसर्च पेपर्स तैयार करने और पब्लिश करने और वो भी पीयर रिव्यू जर्नल में ही। तो उसमें मुझे बहुत सारे वर्कशॉप में ये सवाल आया है कि सर मिलते-जुलते टॉपिक पे यानी क्या जो पीएचडी का टाइटल है उसी टाइटल को लेके पेपर तैयार करना है क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पीएचडी का ही टाइटल यूज़ करके आप पेपर लिखो, यानी क्या 300 पेजेस में जो लिख रहे हो वही 20 पेजेस में लिखो, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। कि जैसे आपका पीएचडी का जो टाइटल है, उसमें से आप ये बड़ी टर्म आपने यूज़ की होनी चाहिए और कल जैसे मैं देख रहा था, दिख रही थी मुझे कुछ बड़ी टर्म्स यूज़ की हुई आपने। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि ये बड़ी टर्म के कुछ आपके थीम्स या फिर कुछ सब थीम्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो क्या? ये बड़े चीज़ की कुछ उसको ब्रेकअप करके आप कुछ थीम्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो क्या? थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4 और हर एक थीम को लेके आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं आपने एक-एक करके, तो इन ऑब्जेक्टिव्स में से एक बार चेक करो कि कोई ऑब्जेक्टिव जैसे 2 नंबर और 7 नंबर, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को यानी एक ही थीम में बैठ रही है क्या? ट्राई टू क्लब टुगेदर द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर कैटरिंग टू वन सिंगल थीम। इनको क्लब करके एक थीम का टाइटल ले लो और उसके ऊपर एक पेपर बन सकता है, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स लेके। उसी तरीके से थीम 2 पे आपका दूसरा पेपर तैयार हो सकता है, थीम 3 पे तीसरा, थीम 4 पे चौथा। अगर और चाहिए आपको 5वां पेपर तैयार करना है तो कंपैरिजन ऑफ थीम 1 विद थीम 2, कंपैरिजन ऑफ 1 विद 3, कंपैरिजन ऑफ 1 विद 4, कंपैरिजन ऑफ 2 विद 3, कंपैरिजन ऑफ 2 विद 4 कर सकते हो। या फिर रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2, रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 3, ऐसे कितने सारे पेपर्स बन सकते हैं ना। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है इनपुट की ज़रूरत है रिसर्च स्कॉलर्स को इन सब चीज़ों को लेके। तो अभी तक जो मैं आपको चारों चीज़ें समझा रहा था, सिंगल चार्ट में आपको समझा रहा हूँ कि जैसे वर्क कल्चर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्क कल्चर, ये कंस्ट्रक्ट हो गया। वर्क कल्चर इज़ मेड अप ऑफ, एक्चुअली वो 6 फैक्टर्स आते हैं, पर स्क्रीन पे ठीक से दिखना चाहिए इसलिए मैंने 2 ही वर्कआउट किए हैं। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ फैक्टर 1 ऑफ वर्क कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इट इज़ फैक्टर 2 ऑफ वर्क कल्चर। यानी क्या ये दोनों चीज़ें मिला के ये एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वो है वर्क कल्चर। अभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में आप जैसे देख रहे हो 1, 2, 3, 4, ये 4 इसके हो गए आइटम्स इंडिकेटर्स, गॉट इट? और इसको 5 पॉइंट स्केल पे स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक हम लोगों ने मेजर किया है। और ये जो स्टेटमेंट्स है, इनको एक तो स्टेटमेंट्स, आइटम्स, इंडिकेटर्स, ये इनको कहा जाता है जनरली। और ये जो 5 पॉइंट स्केल हमने यूज़ की है, इसको कहते हैं क्वांटिनम। ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चनर बनाना है आपको, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपका कंस्ट्रक्ट क्या है, कितने हैं और कौन से हैं। फिर हर एक कंस्ट्रक्ट के फैक्टर्स कितने हैं और इसके लिए फैक्टर एनालिसिस करना होता है, ये शायद आपको मालूम ही होगा। फैक्टर एनालिसिस में 2 प्रकार आते हैं, ईएफए यानी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, और दूसरा होता है आपका एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी, सीएफए, ईएफए और सीएफए। ये आपको शायद मालूम होगा कि फैक्टर एनालिसिस से हमको कंस्ट्रक्ट के फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं एंड विद फैक्टर एनालिसिस वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ग्रुप टुगेदर द सिमिलर स्टेटमेंट्स। तो ये कंसेप्ट है क्वेश्चनर डिजाइन करते वक्त। तो जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस में से आपके वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट्स, ये सब आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। इसका टाइटल है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ओके, इसमें 4 ऑब्जेक्ट, एक्चुअली 10 से 12 ऑब्जेक्टिव थे, पर स्क्रीन पे ठीक से दिखने चाहिए और आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं।
तो पहला ऑब्जेक्टिव ये जो कोई भी रिसर्च स्कॉलर है उसने बनाया था, टू एग्जामिन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोरल ऑफ द वर्कफोर्स। तो आपको भी पता चल गया होगा अभी कि ये जो वर्ड काउंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड्स है। 9 वर्ड में एक या दो ही वर्ड हमारे वेरिएबल होंगे। तो इसमें से आप भी अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेरिएबल कौन सा है, मोरल। पर ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेजर करना होगा, जिसके लिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछने होंगे, इसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, इसलिए ये हो गया कंस्ट्रक्ट। और ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हो गया हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, HOC। इसके बाद टू कंपेयर, यहाँ पे कंपैरिजन करना है किसको, वेजेस को। तो ये वेरिएबल हो गया क्योंकि व्हाट इज योर मंथली वेज या वीकली वेज, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग। कंपैरिजन किसका करना है, मेट्रोपॉलिटन सिटी एक ग्रुप हो गया, सैटेलाइट सिटी दूसरा ग्रुप, और टायर 2 टाउन ये तीसरा ग्रुप, यानी G1 G2 G3 तीन ग्रुप्स हैं, एक वेरिएबल, यानी क्या, वन वे ANOVA करना है। कितनी सिंपल चीजें हैं। और ये जिसका क्लियर है ना उसका रिसर्च फट से हो जाता है। और यही चीज इतने आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत लगती है, या फिर आज यूट्यूब वीडियोस वगैरह है, पर उसमें वही तकलीफ है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें। बिट्स एंड पीसेस फ्रैगमेंटेड मैनर में आते हैं वो वीडियोस, बट स्टिल। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसमें वेरिएबल्स क्या है, टू एग्जामिन ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। हाँ, ये तो कंस्ट्रक्ट हो गया ना, डायरेक्टली मेजर थोड़ी ना करेंगे, नहीं। उसके बाद चौथा, टू एग्जामिन हेल्थ हैजार्ड। तो हेल्थ में तो बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, फिजिकल हेल्थ आपकी और एक साइकोलॉजिकल हेल्थ, दो तो ऐसे ही हो गए, यानी क्या, फिजिकल हेल्थ F1 हो गया, साइकोलॉजिकल हेल्थ F2 हो गया। फिर फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी चीजें आएगी, वो हो गए हमारे अलग अलग वेरिएबल्स या स्टेटमेंट्स, इंडिकेटर्स आप बोल सकते हो। वैसे साइकोलॉजिकल में बहुत सारे हैं। फिर तो इनमें इस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना होता है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो हमने पहले स्टेप में ये वर्कआउट कर लिया है कि हमारी डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेजर वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स। तो हमने वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट्स की लिस्ट तैयार कर ली है, और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनको मेजर कैसे करते हैं। ये अगर आपको पता चल जाता है तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। अभी आपने अगर लिस्ट बना ली है कंस्ट्रक्ट, जैसे अभी जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, ये दो कंस्ट्रक्ट तो मुझे अभी याद है, हेल्थ हैजर्ड, ये तीन। ओके, अभी ये चीज तो तैयार हो गई, आपने वर्कआउट कर लिया है पूरा, वेरिएबल्स हो कंस्ट्रक्ट्स हो ये सब। अभी हम लोग बात करें कि जैसे कंस्ट्रक्ट नंबर 1 है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, तो आपको यहाँ से आके क्वेश्चन थोड़ी ना बनाना है, आपको तो ये चेक करना होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस यानी क्या, इसका डेफिनेशन देखना होगा। कहाँ से आएगी डेफिनेशन, तो ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू से, यानी, और वहां से के भी क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा। हमको तो सिर्फ इनसाइट्स मिलेंगे, हमको ये चेक करना होगा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेजर कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, ये क्वेश्चन है ना। और हमको यही तो मेजर करना है, तो ये कैसे मेजर करते हैं ये जानना होगा हम लोगों को। इफ सपोज हम लोगों को ऑरेंजेस परचेस करने हैं, तो ऑरेंजेस की भाषा क्या है, वो डजन में होती है, थोड़ी ना बोलेंगे कि कितने रुपए किलो ऑरेंजेस है। गेटिंग में हम लोगों को डजन की बात। वैसे ही ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेजर कैसे करते हैं, इसको ये चेक करना होगा। तो उसके लिए वहां पे जाने से पहले एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज स्केल्स। आपको ये चेक करना होगा कि स्टैंडर्डाइज स्केल्स अवेलेबल है क्या, आप जो कंस्ट्रक्ट्स पे काम करना चाहते हो उसके ऊपर। स्टैंडर्डाइज स्केल्स यानी क्या, ये बने बनाए क्वेश्चनियर्स होते हैं। ये आपको चेक करना होता है कि अवेलेबल है क्या। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, इनको इन्वेंटरी, जैसे मैं बता रहा था आपको, इन्वेंटरी टेस्ट या स्केल कहा जाता है। जैसे मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करना है, तो ये स्केल ऑलरेडी अवेलेबल है, ये बुकलेट के फॉर्म में, हैंडबुक या मैनुअल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये एक, जैसे आप देख ही रहे हैं, मैनुअल फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंटरी, यानी क्या, आपको अगर इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करना है तो आपको क्वेश्चनर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये बन के तैयार है ना गेटिंग मी। और ये जो एजेंसी आपको दिख रही है, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, इन्होंने ये बना के रखी है, और ये ऑथर्स है जिन्होंने तैयार करके रखी है। फर्क कहाँ पे आ रहा है, अरे आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर बनाओगे वो, और ये जो बनी बनाई तैयार है,
इसमें फ़र्क क्या है? ये लोग जो है ऑथर्स, ये सीज़न्ड ऑथर्स हैं। ये ट्रेंड है, इनका काम ही ये है कि ये इनका काम ही है रिसर्च करके क्वेश्चनर तैयार करना। और आपका काम क्या है? आपका काम रिसर्च करना है, ना ही स्केल करना। ये हमारा मेजर काम थोड़ी ना है। गेटिंग मी? यानी क्या? हमको अगर टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम खुद थोड़ी ना थर्मामीटर बनाएँगे। थर्मामीटर अवेलेबल ही नहीं है तो बनाना ही होगा। पर थर्मामीटर है ना, पहले चेक तो करेंगे थर्मामीटर है क्या? है ना, फार्मेसी में जाइए, थर्मामीटर लेके आइए, टेम्परेचर ले लीजिए। कहीं में अभी मार्केट से लाया हुआ थर्मामीटर और आप जिद पे ही अड़ गए कि नहीं ठीक है यार, मैं बना ही लेता हूँ, मेरा ही थर्मामीटर यूज करूंगा और उससे मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा। तो अभी ये दोनों एक्टिविटी में जो फर्क आ रहा है, मार्केट से आपने लाया हुआ थर्मामीटर और आपने खुद में बनाया हुआ थर्मामीटर, इसमें मेजरमेंट में थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही ना। और किसका एक्यूरेट माना जाएगा? ऑब्वियसली जो मार्केट से लेके आए, क्योंकि वो कंपनी का काम ही है थर्मामीटर तैयार करना है। और उनको बाकी बाकायदा परमिशंस मिली है, उसके ऊपर आईएसआई का स्टैंप लगा है, उसकी ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है गेटिंग में। यानी कि वो ज्यादा रिलायबल है। आप तो जिंदगी में पहली बार थर्मामीटर बना रहे हो, उसकी गारंटी क्या आती है? आपने जो बनाया है उसको सही बना है और एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे रहा है। यही तो फर्क है स्टैंडर्डाइज स्केल और हम लोग जो एज ए इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर बनाते हैं उसमें। तो हमको चेक करना होगा कि जो भी कंस्ट्रक्ट हम मेजर कर रहे हैं, क्या उसके लिए स्टैंडर्डाइज स्केल्स अवेलेबल अगर है तो हम लोग ले लेंगे, इसको पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये योग्य है, बिल्कुल जो कॉन्टेक्स्ट आप लेके चल रहे हो उनके लिए बिल्कुल योग्य है, आप इसको यूज करेंगे। अदरवाइज आपको लगता है कि इसमें सपोज 50 क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि 50 बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे स्टडी के लिए, 50 में से एक 8 से 10 तो ऐसे है कि जो रिलीवेंट ही नहीं लग रहे मेरे रेस्पोंडेंट के लिए, आप उसको निकाल दीजिए। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका रेफरेंस हम लोगों को देना होगा, साइटेशन रेफरेंसेस देने ही होंगे कंपलसरी। और मॉडिफाई किया है तो फिर से रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग आपको करनी होगी। मैं थोड़ी देर में बात कर ही रहा हूँ रिलायबिलिटी वैलिडिटी की। जैसे और एक कंस्ट्रक्ट है कि प्रोफेशनल कमिटमेंट स्केल फॉर टीचर्स। ओके, ये अगर आपको मेजर करना है, ये वाला कंस्ट्रक्ट प्रोफेशनल कमिटमेंट, ये आपका कंस्ट्रक्ट है। तो ये अगर आपको मेजर करना है तो आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बना बनाया तैयार है। आप देख रहे हो ये पब्लिशर है। तो ऐसे बहुत सारी स्केल्स अवेलेबल है मार्केट में जो हम लोगों को प्रोक्योर करनी होती है और हम लोग आसानी से यूज भी कर सकते हैं उसको। पर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को ये स्टेप मालूम नहीं होती कि ऐसा कुछ कंसेप्ट है या ऐसे कुछ कंस्ट्रक्ट नाम की कोई चीज है, उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ रिसर्च एजेंसीज है जिन्होंने काम करके रखा है, बनी बनाई क्वेश्चन तैयार है, स्टैंडर्डाइज जिसको कहते हैं। ये न मालूम होने की वजह से रिसर्च स्कॉलर खुद अपने मन से कुछ क्वेश्चनर बनाता है और उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग भी बहुत बार मैंने देखा नहीं है कि लोग करते हैं। तो जो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक वे हो गया रिसर्च करने का। जैसे मैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल बता रहा था, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही कॉमन सी चीज है ना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेजर करना। और लोगों को नहीं मालूम इसके भी स्टैंडर्डाइज स्केल्स आती है, जैसे कुपुस्वामी हो गया, या फिर मेरे ख्याल से इसकी पारेख की स्केल है, गौर की स्केल है, इतनी सारी स्केल्स है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेके। पर रिसर्च स्कॉलर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, वो अपना खुद का क्वेश्चन तैयार करते हैं। और उसमें अन्य से हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, 125 क्वेश्चंस थे बॉस। 125 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम वही है ना, क्या मेजर करना है, ये जब तक नहीं मालूम आपको तो आप जो भी पूछेंगे जो भी करेंगे वो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक तरीका ही हो जाता है। 125 क्वेश्चन में आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल के लिए निकालने के लिए यूज कर रहे हो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अननेसेसरी थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उसको लेके कुछ लिखा ही नहीं था पर क्वेश्चन पूछे हुए दिख रहे थे। और ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में जो चीजें थी उसको लेके भी बहुत सारी चीजें मिसिंग लग रही थी। तो ये मिस्टेक्स होती है जब रिसर्च स्कॉलर बिना ट्रेनिंग के कोई सीरियस एक्टिविटी करता है। हाँ, आप जैसे एग्जांपल्स और देख सकते हैं, ऐसे तो अनगिनत है। जैसे हजारों में ये स्किल्स अवेलेबल, जैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हमको एम्प्लॉय का निकालना है या टीचर को लेके है, हम इसको प्रोक्योर तो कर लेंगे, पर कॉन्टेक्स्ट चेंज करके इसको मॉडिफाई कर लेंगे, इसका साइटेशन रेफरेंसेस दे देंगे। पर ये तो पता चलेगा ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में कौन से वेरिएबल्स आते हैं, ये तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। टीचर का कॉन्टेक्स्ट चेंज करके एम्प्लॉय का डालना होगा। सेल्फ एस्टीम में से बहुत सारे स्केल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मेजर करनी है, तो एज यू कैन सी ऑल दीज आर पब्लिश्ड स्टैंडर्ड स्केल्स। अभी आपको जो कंस्ट्रक्ट के साथ आप डील कर रहे हो, जैसे कल मेरे ख्याल से
मुरली सर भी कल हम एक डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे थे, मुझे हल्का धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि रोल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा एक कंस्ट्रक्ट पे सर काम कर रहे हैं। अभी इसको लेके सपोज कोई स्केल अवेलेबल ही नहीं है और या ढूंढ के भी मिल नहीं रही है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्ट आपको ढूंढ के भी स्केल, स्टैंडर्डाइज स्केल मिल नहीं रही है, तो आप इसके ऊपर खुद ही क्वेश्चन बनाओ, नो डाउट अबाउट दैट। पर इस कीवर्ड को लेके आप सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करेंगे, और लिटरेचर रिव्यू में आप जो मोस्ट साइटेड पेपर्स होते हैं, यानी सबसे पॉपुलर पेपर्स, या जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स जिसको हम कहते हैं, हमारे फील्ड के बादशाह लोग, उन्होंने क्या काम करके रखा है, उन्होंने अगर ये कंस्ट्रक्ट मेजर किए हैं तो सीधा उनको रेफर करेंगे ना कि उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट को मेजर कैसे किया है। आप सीधा ये पेपर में जाइए, मोस्ट साइटेड पेपर में, जैसे पेपर नंबर 1 आपने डाउनलोड किया, ये पेपर लगभग 20 से 25 पेजेस का होता है। उसमें मेथड नाम से एक सेक्शन होता है, मेथड सेक्शन नंबर 4, उसमें जाइए, 2 पैराग्राफ दिखेंगे। यहाँ सीधा सीधा मेंशन होगा कि ये कैसे मेजर किया है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसने स्टैंडर्डाइज स्केल यूज की है क्या, उसका नाम भी लिखा होता है कि द ऑथर्स हैव यूज द स्टैंडर्डाइज स्केल फॉर रोल ऑफ मैनेजमेंट डिजाइंड बाय। वहां पे आपको पता चल जाएगा। आपको ढूंढ के नहीं मिला ना स्टैंडर्ड स्केल, यहाँ से पता चल जाएगा ना कि स्टैंडर्ड स्केल ये बंदे ने यूज की है ना, वो बता रहा है आपको नाम। फिर उसको लेके आप अगर गूगल करते हो या फिर जो एजेंसीज है उनसे कांटेक्ट करते हो तो ये मिल जाती है। ठीक है? और ये पता तो चले कि हम जो कंस्ट्रक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे कितनी स्केल्स है, स्टैंडर्डाइज स्केल्स, उसमें से सबसे ज्यादा वाइडली यूज कौन सी होती है। जैसे आप सपोज 100 पेपर्स पढ़ रहे हो, आपको दिखेगा ना एक ही चीज पे आप 100 पेपर्स पढ़ रहे हो, तो आपको 100 तरीके पता चलेंगे ना कि ये चीज को मेजर कैसे करते हैं। और जो सबसे पॉपुलर तरीका है यहाँ से ही पता चलेगा। 100 में से अगर 50 लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी एक्स ऑथर की स्केल ही यूज की है, तो आपको भी यही स्केल यूज करनी है। इट इज सो सिंपल। अगर ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज स्केल यूज नहीं की है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा तो होगा ना, ए सेल्फ प्रिपेयर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर वाज डिजाइंड और डेटा कलेक्शन पर्पज। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड अगर वो क्वेश्चनर है, तो वो वहां पे ब्रैकेट में लिखते भी है सी अनेक्शर। जाइए अनेक्शर में, वहां पे क्वेश्चनर की कॉपी है, चेक करिए। इसमें से जो बेटर क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वो क्वेश्चंस एक जगह कॉपी करना शुरू कर दो, ऑब्वियसली विथ रेफरेंसेस। ये जो भी कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, इसमें एक मैंडेटरी चीज है, वो है साइटेशंस। बिना साइटेशन का कुछ भी नहीं करना है, इसकी वजह से प्लेगरिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपका थीसिस कंप्लीट होने के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होती है फॉर प्लेगरिज्म चेक पर्पज। और हमारी यूनिवर्सिटी में उरकुंड नाम से सॉफ्टवेयर है जो यूजीसी ने रिकमेंड किया हुआ है। ओके, और इसमें से आपका जो सॉफ्ट कॉपी है, सीडी आप सबमिट करते हो वहाँ पे, ये सॉफ्ट कॉपी उरकुंड नाम के सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाती है, और इसका एक रिपोर्ट तैयार होता है। और इस रिपोर्ट में कॉम्प्रहेंसिव मल्टीपल पेजेस रिपोर्ट होता है ये। और इसमें एक एसआई आता है, एसआई स्टैंड्स फॉर सिमिलैरिटी इंडेक्स। वो परसेंटेज में आता है, सबसे ऊपर टॉप में लिखा होता है एसआई। और नीचे फिर आपने जो जो कॉपी पेस्ट किया है जहां जहां से, इस तरफ रिपोर्ट के इस तरफ मेरे पास है एक कॉपी, मैं ब्रेक में ढूंढ के रखता हूँ, आज के ब्रेक में आपको दिखा दूंगा कि वो रिपोर्ट दिखते कैसे है। क्योंकि हमने परसों ही अभी एक पेपर सबमिट किया है, तो उसका ही मैंने प्लेगरिज्म चेक किया था, तो वो रिपोर्ट है ही मेरे पास इंसिडेंटली अभी। तो यहाँ पे आपने क्या क्या कॉपी पेस्ट किया है वो यहाँ जैसे कि वैसा हाईलाइट करके आता है अलग अलग कलर में। और यहाँ उसका ऐसा आता है कि आपने 7%, सबसे बड़ा परसेंटेज ऊपर में रहता है क्योंकि धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो 7%, जैसे टेंड ऑफ ऑनलाइन, कल भी हम गूगल स्कॉलर में देख रहे थे, मैंने बताया भी था कि आपको टेंड ऑफ ऑनलाइन करके एक है रिसोर्स, कि जहाँ से हम लोग जनरली टेंड ऑफ ऑनलाइन, तो ये जनरली आपको दिखेगा ही, ये प्लेगरिज्म का रिपोर्ट है टेंड ऑफ ऑनलाइन आपको दिखेगा ही, और वो भी टॉप पे ही दिखता है जनरली। गूगल स्कॉलर से जो लेते हैं वो जनरली टेंड ऑफ ऑनलाइन से होता है। तो ये आपको दिखेगा हाईलाइट करते हुए कि ये पर्टिकुलर पेपर आपने इस ऑथर का जैसे कि वैसा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो कुछ भी छुपा नहीं जाता है, ये सब पकड़ा जाता है। इसलिए आप जो भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो कहीं से भी, उनका क्रेडिट देना जरूरी है। और ये ऐसा है जो है, ये परसेंटेज में यहाँ रिफ्लेक्ट होगा।
और ये यूजीसी की तरफ से रिकमेंडेशन है, इट शुड बी लेस दैन 10%। इट शुड बी लेस दैन 10%। 10% तक प्लेगरिज्म अलाउड है, उसके ऊपर प्लेगरिज्म अलाउड नहीं है। दैट इज वाई यू नीड टू टेक utmost केयर रिगार्डिंग गिविंग due citations to the sources, the original sources, you can say। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि नेक्स्ट स्टेप जो हमको करनी है वो लिटरेचर रिव्यू, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लिटरेचर रिव्यू कॉम्प्रहेंसिवली करना ही है। अगर रिसर्च ढंग से करना है तो लिटरेचर रिव्यू इज द ओनली की। और वॉट एवर आंसर्स, वॉट एवर क्वेरीज यू आर हैविंग कि क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, मैं बोल रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू। आप बोल रहे हैं कि सर हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, मैं बोल रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू। सर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे तैयार करते हैं, मैं बोल रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू। सर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे तैयार करते हैं, लिटरेचर रिव्यू। आप जो भी मुझे पूछेंगे उसका आंसर लिटरेचर रिव्यू का आके खत्म हो जाता है। इसलिए, और मुझे भी पढ़ाने वाला एक ही मेंटर है, वो है लिटरेचर। जितना मैंने पढ़ के समझा है चीज़ों को, वो तो मुझे किसी इंटरनेट की साइट में या किसी भी किताब में इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मैंने लाइव पेपर पढ़ के समझी है चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेजर करना है, जस्ट प्ले विद गूगल करके तो देखिए, कुछ तो कुछ आता है। हाँ। ऐसी कोई चीज पता चल जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में जस्ट एक मजाक करके जस्ट आपको पढ़ाना है, तो मैंने जस्ट गूगल करके देखा कि हाउ टू मेजर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। मुझे एक नई चीज पता चल गई ना कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडिकेटर नाम से कोई चीज है। करेंगे कि जो लेवल हम लोग बोल रहे थे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस लेवल, बेटा ये स्ट्रेस लेवल नहीं होता है, ये स्ट्रेस इंडिकेटर होता है, और जिसको ओएसआई कहते हैं। और ओएसआई में कोई एक नंबर आएगा। अब ये नंबर कैसे आएगा, ये साइट पे जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रोसीजर दी है पूरी कि ओएसआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। और आप देख रहे हैं मैंने ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस डालने के बाद हर जगह अगर मुझे ओएसआई ओएसआई दिख रहा है, जो मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, जो मैं मेजर कर रहा हूँ उसको लेके कोई एक टर्म है जो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिटरेचर रिव्यू एक ऐसी एक्टिविटी है जहां से इनसाइट्स मिलना शुरू हो जाता है। जस्ट प्ले विथ इट। जस्ट मैंने अभी डायरेक्टली यहाँ पे गूगल कोई कमांड दे दी कि एम्प्लॉय मोरल में मेजर करना चाहता हूँ, गूगल सर आपके पास कुछ है क्या। गूगल सर बोलते हैं कि ले ले बेटा ये देख। इतने सारे हैं, 1,93,00,000 है रिजल्ट्स की एम्प्लॉय मोरल कैसे मेजर करते हैं, कितने चाहिए ले ले बेटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेज टू मेजर एम्प्लॉय मोरल। और हम लोग जो बोल रहे थे ना कि मोरल में ये आपका कंस्ट्रक्ट है, फैक्टर्स क्या है ये दे दिया ना फैक्टर्स इसने। प्रोडक्टिविटी F1 है, टर्नओवर रेट F2 है, एब्सेंस रेट F3 है। ये पता तो चल रहा है यहाँ से कुछ न कुछ, जैसे क्लूलेस थे, कुछ न कुछ तो पता चल रहा है कि ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम स्टडी करना चाहते हैं। ये सब मालूम ही नहीं तो मुझे बताइए क्वेश्चन में बनेगा कैसे। और जो भी बनेगा वो गलत नहीं बनेगा क्या। क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस। घर में बैठ के बंद कमरे में आप कितना इमेजिन करोगे, कितना विजुअलाइज करोगे चीजों को। और आपके नॉलेज को भी कुछ कंस्ट्रेंट है ना। ऐसी तो बात है नहीं कि एम्प्लॉय मोरल पे आपने 10 पीएचडी कर ली और अभी 11वीं कर रहे हैं तो अभी कुछ से पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा तो है नहीं, पहली बार ही कर रहे हैं ना। इनसाइट्स आना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसको लेके एग्जिस्ट क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। वो जब तक पता नहीं चलेगा हमारी आइडियाज फाइन ट्यून होना मुश्किल लगता है। इसलिए रेफरेंसेस बड़े मिसिंग लगते हैं। जब हम वाइवा वगैरह लेते हैं तो पता चल जाता है कि कितनी लेवल पे काम किया हुआ है। चलो स्टेप नंबर 3 पे हम लोग जा रहे हैं। वो है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड चार्ट। मैंने फोटोग्राफ्स निकाल के रखे हैं, उन्हें शायद शेयर करनी चाहिए थी आपके साथ। ठीक है मैं दिखा दूंगा आपको, कल का सेशन है मेरा फिर से। इंफॉर्मेशन नीड चार्ट हम लोगों को तैयार करना होता है क्वेश्चन तैयार करते वक्त। ये चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है। ये मेरा खुद का ओरिजिनल सोर्स नहीं है, ये चावला सोंधी नाम की एक किताब है, रिसर्च मेथोलॉजी बाय चावला एंड सोंधी। ये किताब में इसका रेफरेंस है इंफॉर्मेशन नीड चार्ट का, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये नीड चार्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं टेबल के, और ये हमको फिलअप करने होते हैं। जैसे पहला कॉलम बोल रहा है कि यू नीड टू वर्कआउट ऑन योर आर्क्यूज। आर्क्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक आर्क्यू ब्रॉड होता है और कुछ स्पेसिफिक आर्क्यूज होते हैं। आर्क्यू का मतलब है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन यानी क्या, हमारे पीएचडी के दौरान हम कौन से सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों को एक एक करके लिखना, इसको रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं। मेरी में, और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को ये फंडा ही नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ होता है।
देखिए, जस्ट इमेजिन करिए कि आप किसी एक सोशल गैदरिंग में हैं और आपको कोई इंट्रोड्यूस करके दे रहा है, आपका होस्ट आपको किसी एक तीसरे आदमी को, अनजान आदमी उसको आपको इंट्रोड्यूस करके दे रहा है और वो बता रहा है कि आप पीएचडी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो आपको पूछेगा ही ना कि साहब आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। तो उस वक्त हम उसको बता तो देते हैं, पर वो जाने के बाद फिर से वही मन में चलते रहता है कि यार मैं सही में वो कर रहा हूँ क्या जो मैंने इसको बताया है। क्योंकि ये सवाल ना हम लोग अपने आप को पूछते ही नहीं है कि हम पीएचडी कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे बातों में कुछ सेंस लग रहा है आपको, तो आज ही शाम को खाना वाना खाने के बाद जस्ट खुद को पूछिए कि पीएचडी कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, और ऐसे कौन से सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं हमारे पीएचडी के थ्रू। एक प्लेन पेपर पे लिख के रखिए कौन से सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, कितने सवाल है, कौन से सवाल है, कौन से ऑर्डर में है। ये अगर क्लियर हो जाता है ना आज शाम तक, तो मुझे लगता है कल से काम आपका स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पीएचडी जल्दी उसकी होती है जिसको लिंक लग जाती है। एक बार लिंक लग गई ना, 5 साल की जरूरत ही नहीं, ये 6 महीने 1 साल में भी आराम से हो सकता है, पर लिंक लगना जरूरी। लिंक कब लगेगी? जब आपके आइडियाज क्लियर है, क्या करना है और कैसे करना है ये क्लियर है आपका, तो पीएचडी हो जाती है जल्दी। अदरवाइज मैं कल ही आंकड़ा बता रहा था, 100 में से 70 लोग 5 साल में रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और एक्सटेंशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। उसका बड़ा कारण ही ये है, लिंक ना लगना। और वो लिंक तभी लगेगी जब आपके खुद के आइडियाज क्लियर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आर्क्यूज, ये टेबल सही में बना के देने की कोशिश तो करिए। आप क्वेश्चन बना रहे हो नहीं बना रहे हो, पर ये वर्कआउट तो करके रखिए थोड़ा सा, कि जैसे यहाँ पे कौन से सवालों के जवाब आप लिख ढूंढ रहे हो, एक एक करके लिख लीजिए। फिर हर एक सवाल को लेके आपके शायद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपने ये 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। फिर हर एक ऑब्जेक्टिव से आपके वेरिएबल डिड्यूस होंगे, और ये कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ये हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। और उसके बाद हर एक वेरिएबल को लेके आपको क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जैसे मैं बोल रहा था डेटा रिक्वायरमेंट। आपकी डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे इनकम मेजर करना है, आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है टू कंप्यूट और टू डिटरमाइन एवरेज मंथली इनकम। ठीक है, तो अभी एवरेज इनकम ये तो वेरिएबल हो गया, पर अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक सेंस में चाहिए होगी, तो ये इनकम को आपको ऑपरेशनलाइज करना होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं ये कॉलम में, और यहाँ पे इन वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज करते हैं। ऑपरेशनलाइज यानी क्या? ऑब्वियसली आप इनकम बोल रहे हो, पर इनकम कौन सा? ग्रॉस इनकम या नेट इनकम, मंथली इनकम कि एनुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम या हाउस होल्ड का इनकम, यानी वो जो बंदा है उसके पूरे फैमिली की इनकम कितनी है, कि वो जो बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं सिर्फ उसकी इनकम पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशनलाइज करना होगा ना कहीं। आप सीटीसी की बात कर रहे हैं या आप नेट की बात कर रहे हैं। सीटीसी यानी एनुअल पैकेज हो गया ना, विच इंक्लूड्स ऑल दी पर्क्स एंड इंसेंटिव्स एज वेल। पर आप स्पेसिफिक सेंस में इनकम यानी कौन सा निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना होगा ना आपको। उसके से एनालिसिस कैसे होगा? इसको कहते हैं हम लोग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे दूसरे इसमें आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेजर करना है। यहाँ पे ये नहीं आएगा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में क्या क्या चीजें आपको लगेगी, जिसको मैं कह रहा हूँ आइटम्स इंडिकेटर्स, वो लिस्ट यहाँ पे जाएगी। और फिर आखिरी के कॉलम में ये इंफॉर्मेशन हमको कौन देगा, जिसको हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। अगर ये टारगेट पॉपुलेशन हर बार ये हर रो में चेंज हो रही है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चनर के सेट कितने बनाने हैं। जैसे कल जो मुरली सर का एक हम बात कर रहे थे, रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ लेबर, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए अलग से क्वेश्चनर बनेगा और लेबर के लिए अलग से क्वेश्चनर बनेगा ना। सो ये इंसाइट्स कब आएंगे? जब हम ये इंफॉर्मेशन नीड चार्ट को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। और नागपुर यूनिवर्सिटी का प्री पीएचडी कोर्स वक्त मालूम नहीं मैं कितने सालों से ले रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी फीडबैक आते हैं, फोन आते हैं, एसएमएस आते हैं वर्कशॉप के बाद, और लोग टच में है। जिसने मेरा 5 साल 7 साल पहले भी प्री पीएचडी कोर्स वक्त में मुझे सुना होगा, वो लोग भी टच में है ही अभी। और वो बताते हैं कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन नीड चार्ट के बारे में बात की थी, वो सर मैंने बनाया, एक बार देख लेते क्या। तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। ठीक है, आपकी जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन एंथुजियास्टिक है ना। आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ ना एक दिशा की जरूरत है। रिसोर्सेज तो इतने हैं बॉस, स्टडी मटेरियल की तो कमतरता ही नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप जस्ट गूगल में डालिए, यूट्यूब पे डालिए, 1000 वीडियोस मिलेंगे आपको, लाखों साइट्स मिल जाएगी।
रिसोर्सेज की कमतरता ही नहीं है। ई बुक्स मालूम नहीं कितने सारे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट की साइट से। रिसोर्सेज स्टडी मटेरियल की कमतरता ही नहीं है, सिर्फ आपको दिशा की जरूरत है। तो वो दिशा मिल जाए तो मुझे लगता है आप तो यार वंडर क्रिएट कर सकते हो। हमारे वक्त तो बड़ी तकलीफें थी रिसर्च मेथोलॉजी का कोर्स तो के कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, और बताने वाला भी कोई नहीं था, गाइड भी नहीं करते थे लोग। जिसको मालूम होता भी था तो वो इतने आसानी से थोड़ी ना बताते थे, बताते भी थे तो हाफ डे कुछ तो भी इसके आगे का तुम देखो और इसी वजह से शायद हम लोग तैयार हो गए पर आपको तो वैसा है नहीं है। आप ये प्री पीएचडी कोर्स वक्त 10 दिन में मालूम नहीं 5-7 कितने 7-8 रिसोर्स पर्सन, वो भी सब तगड़े लेवल के आपको आके पढ़ा रहे हैं, तो इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। तो मुझे लगता है आपको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है, और जो ये प्री पीएचडी कोर्स वक्त से मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेप्स हम लोगों ने अभी जस्ट समराइज कर रहा हूँ कि हम कंसेप्ट डेवलप करते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट्स वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं, कंस्ट्रक्ट से फिर इंडिकेटर्स, और फिर हम क्वांटिनम तैयार करते हैं, जिसको खास करके लीकर्ट स्केल जब तैयार करते हैं कंस्ट्रक्ट्स के लिए, उस वक्त ये स्टेप्स फॉलो की जाती है। जैसे मैं अभी जो बता रहा था उसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने एक ही कंस्ट्रक्ट आइडेंटिफाई किया, सपोज ऐसे 4-5 जितने भी हो आपको स्टेप्स यही फॉलो करने। इफ सपोज मेरा एक कंस्ट्रक्ट है कंज्यूमर परसेप्शन, और कंज्यूमर परसेप्शन को लेके मैंने ये लिटरेचर रिव्यू करके ये 6 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि परसेप्शन मेजर करने के लिए प्राइस ये एक एट्रीब्यूट हो गया, जिसको मैं कह रहा हूँ आइटम 1। अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो परसेप्शन का ही एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है, जिसको मैं कह रहा हूँ I2। बाद में प्राइड इन यूजिंग, ये मेरा I3 है। बाद में सुटेबल फॉर लाइफस्टाइल, ये I4 है। अट्रैक्टिव डिजाइन, ये मेरा I5 है। और एस्थेटिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये मेरा I6 है। ये कहाँ से पता चला मुझे कि परसेप्शन मेजर करने के लिए ये 6 चीजें मैक्सिमम लोगों ने यूज की है, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ये आया लिटरेचर रिव्यू से। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंडिकेटर्स तो आइडेंटिफाई कर लिया, अभी मैं इनको स्टेटमेंट्स में पिरो रहा हूँ। आप देख रहे हैं अभी इजी अवेलेबिलिटी मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी, ये मेरा पहला इंडिकेटर था, इसका मैंने स्टेटमेंट बना लिया अभी। स्टेटमेंट क्या बनाया था, प्रोडक्ट्स आर इजीली अवेलेबल। और ये स्टेटमेंट को लेके अभी मैं रेस्पोंडेंट को पूछ रहा हूँ कि आपका एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट लेवल कितना है। इसको मैं कह रहा हूँ क्वांटिनम। ये 5 पॉइंट हो सकता है, 7 पॉइंट हो सकता है, 9 पॉइंट हो सकता है, पर जनरली 5 पॉइंट यूज करते हैं, 7 पॉइंट यूज करते हैं एट द मोस्ट। ठीक है, तो हर एक आइटम को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं इसको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट्स पे मैं एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का जो एक्सटेंट है वो यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे द प्रोडक्ट्स आर इजीली अवेलेबल, मैं बोल रहा हूँ नहीं यार ऐसा थोड़ी ना, मुझे तो मिलती ही नहीं है प्रोडक्ट, तो आई विल टिक मार्क ओवर हियर। इसके कोडिंग करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर इसके स्कोर्स आते हैं और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, वो तो एनालिसिस का पार्ट हो गया। अभी तो क्वेश्चन डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर अ रेस्टोरेंट, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकालना है हम लोगों को, तो ये रेस्टोरेंट में जो कस्टमर्स आते हैं इनका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है ये मुझे जानना है। तो ऑब्वियसली कस्टमर के रेस्टोरेंट के सेंस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन कौन से सेंस में होगा, तो मेन्यू जो है, मेन्यू उसकी वैरायटी, या फिर मनी बेनिफिट, सर्विसेज ऑफर्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ फूड, ये इंडिकेटर्स हो गए। इधर केली तर आर्यन पुष्पा मैडम का क्वेश्चन है। ओके, नाही तो सर मैं ये त्यांना म्यूट केलंय, त्यांचं अच्छा, अनम्यूट असेल कदाचित. हाँ हाँ। ओके. देन वी आर गेटिंग इनटू सेक्शन नंबर 5, कुछ गाइडलाइंस में शेयर कर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू करिए, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपका एक खुद का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन बैंक के लिए आपके पास कुछ क्या बोलते हैं सोर्सेस है कि शोध गंगा, आपको मालूम है ये थेसिस की रिपोजिटरी है। ओके, लगभग 3 लाख थेसिस है यहाँ पे शोध गंगा में। तो आपके डिसिप्लिन के देख लीजिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे ब्राउजिंग के ऑप्शन से यहाँ देख रहे हो आप एडवांस सर्चिंग में, तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन वाइज भी सर्च कर सकते हो इकोनॉमिक्स के कितने हैं, और जो आपके काम के लग रहे टॉपिक से रिलेटेड वो थीसिस को आप चेक करेंगे, उनके अनेक्स्चर में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन अटैच होते ही है, तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे।
और वो डाउनलोड करके आपकी खुद की एक क्वेश्चन बैंक डेवलप हो जाएगी। दूसरी साइड में कल भी बात कर रहा था थीसिस को लेके, ओपन थीसिस एंड डिसर्टेशन, ओपन एक्सेस थीसिस एंड ओएटीडी, जैसे मैं कल बात कर रहा था, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चनर्स मिल जाते हैं। ये मैंने ओएटीडी से डाउनलोड किया है, कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर। एज यू कैन सी दिस इज रेडीली अवेलेबल क्वेश्चनर। मैं जो बोल रहा था कि कंस्ट्रक्ट्स कितने हैं मेरे क्वेश्चनर में, सेक्शंस कितने होंगे, हर सेक्शन में मैं क्या आइटम्स इंडिकेटर्स कौन से लूँ, तो ये सब सवालों के जवाब यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। ये भी मैंने कल का बात किया था, NDLTD डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा डेटाबेस मिल जाता है जहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। बाद में गूगलिंग, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्लेन गूगलिंग बोल रहा हूँ, बहुत बार यहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके क्वेश्चन ढूंढो, डायरेक्टली ये कमांड दे दीजिए ना, क्वेश्चन हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल जाते हैं ये। एज यू कैन सी 5,64,000, तो कम से कम शुरू के 2-4 तो देख सकते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो क्लू मिल जाते हैं। जैसे ये पर्पल दिख रहा है या नहीं, मैंने ये ओपन करके देख लिया, सो सिंपल है ना। बात क्या हो रही है, खुद का दिमाग ना लगाते हुए रेडी अवेलेबल क्या है वो देख लीजिए, और हम जो सोच रहे हैं उससे बेटर ही वो होता है। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। कितना इमेजिन करेंगे ना घर में बैठ के, उससे बेटर है कि इनसाइट्स तो लो। 100 पेपर पढ़ने के बाद पूरा रिवैम्प हो जाता है, प्रोजेक्ट ही पूरा रिवैम्प हो जाता है, पता चलना शुरू हो जाता है यार, क्यों नहीं यार, मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले क्यों नहीं मैंने एलआर कर दिया, तो शायद पीएटी मेरी और बेहतर हो गई होती। ये एनलाइटनमेंट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद लेआउट प्रिपेयर कर लेंगे। आप सिंपल सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन का टाइटल, रेस्पोंडेंट प्रोफाइल, फिर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, कितने सेक्शंस है, क्योंकि आपकी थीम आइडेंटिफाई हो चुकी है, थीम 1, थीम 2, कंस्ट्रक्ट 1, कंस्ट्रक्ट 2, उसके लिए हर एक सेक्शन उसका हेडिंग दे देंगे, और हर एक हेडिंग के यहाँ पे फिर आपके क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन बैंक से ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे एक एक सेक्शन के, और उसको फिर लॉजिकल ऑर्डर में सजा देंगे, तो क्वेश्चनर बन जाता है। बाद में एक और एस्पेक्ट आता है क्वेश्चन डिजाइनिंग के सेंस में, वो है आपका अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें दो मेजर कॉन्फ़िगरेशन है, एक आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अभी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड यानी क्या, ये समझा देता हूँ मैं। ओपन एंडेड का मतलब है कि आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो और इसमें कोई चॉइसेस नहीं दे रहे हो, आप रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछ रहे हो डायरेक्ट, और उनको बोल रहे हो कि इसका आंसर आप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टिक मार्क ऑप्शन है, ऑप्शन भी ऐसा कुछ दिया नहीं है आपने, सिर्फ डैश डैश करके लाइन छोड़ दी है और वहां पे वो लिख देगा। ओपन एंडेड में दो प्रकार हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड टेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। जैसे विच इज योर फेवरेट टीवी सीरियल, आपने डैश कर दिया, और यहाँ आप बोल रहे हो वो हाउस वाइफ का सर्वे सपोज, तो वो यहाँ पे लिखेगी जो भी उसकी ऑन गोइंग फेवरेट टीवी सीरियल है, वो यहाँ पे नाम लिखेगी, सपोज टू सोम, ओके, जो भी है वो यहाँ पे लिखेगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा और डायरेक्टली उसको डैश 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 करके जगह छोड़ दी, और यहाँ पे जो रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो टेक्स्ट में आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड टेक्स्ट। आई लाइक नेस्कैफे बिकॉज, आप कारण बता रहे हो, यहाँ पे रेस्पोंडेंट फिर लिखेगा कि उसको नेस्कैफे क्यों अच्छी लगती है। उसके बाद आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कार सर, हम ओपिनियन ले रहे हैं, वो लिखेगा यहाँ पे, उसके दिमाग में जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कार को लेके वो यहाँ लिखेगा, और जो भी डेटा आएगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। दूसरे है ओपन एंडेड में दूसरा प्रकार, जिसको कहते हैं ओपन एंडेड न्यूमरिक, यानी ये ओपन एंडेड ही है पर जवाब जो है वो नंबर में आएगा। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हो व्हाट इज योर एज, यहाँ पे आपने कैटेगरीज नहीं दिया, आप डायरेक्टली पूछ रहे हो कि आपका एज क्या है, आपकी मंथली सैलरी क्या है, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, बाद में आप हर महीने में कितना अमाउंट सेव कर लेते हो सैलरी का। तो यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है ये नंबर में है, और हमने यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं दिए हुए हैं, इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड न्यूमरिक। उसके बाद आते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड का मतलब ही वही है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चॉइसेस दे रहे हैं, और इसमें 4 प्रकार है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लोज एंडेड में जनरली रेस्पॉन्सेस को टिक मार्क किया जाता है, आपके जो रेस्पोंडेंट्स है वो टिक मार्क करेंगे गिवन चॉइसेस में से जो अप्रोप्रिएट चॉइस है उस पे। इसमें पहला जो प्रकार है वो है डाइकोटोमस क्वेश्चंस, यानी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें 2 चॉइसेस दे रहे हो, और 2 में से किसी एक जगह आपका रेस्पोंडेंट टिक मार्क करेगा। जैसे आर यू डायबिटिक, यस और नो, तो जो भी है वहां पे वो टिक मार्क करेगा।
व्हाट काइंड ऑफ पेट्रोल डू यू यूज इन योर कार? तो दो ऑप्शन है, नॉर्मल, रेगुलर, और दूसरा है प्रीमियम। दो में से किसी एक जगह पे वो टिक मार्क करेगा। यानी क्या डाइकोटोमस क्लोज एंडेड इसलिए है कि क्वेश्चन है, उसके बाद चॉइसेस है, पर चॉइसेस दो है, तो दो में से किसी एक जगह टिक मार्क। उसके बाद आते हैं आपके एमसीक्यूज, और आपको भी मालूम है एमसीक्यू का मतलब, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मल्टीपल चॉइसेस दे रहे हो। जैसे एज ग्रुप कि 18 से 28, 29 से 38, लाइकवाइज ना, आपने 5 चॉइसेस दे दी, और यहाँ पे आपका रिस्पोंडेंट जो अप्रोप्रिएट और रिलीवेंट आंसर है वहां पे वो टिक मार्क करेगा। उसके बाद एजुकेशन आप देख रहे हो, मल्टीपल चॉइसेस दी है, और इसमें से किसी एक जगह पे वो टिक मार्क कर देगा, लाइकवाइज जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है। और यहाँ पे मोस्टली ना डेटा जो आता है वो फैक्ट के फॉर्म में आता है, एमसीक्यूज में मोस्टली फैक्ट के फॉर्म में, कि जैसे आपका एज ग्रुप, ये फैक्ट ही होगा ना कि आपका जो भी रिलेवेंट एज है उसी एज ग्रुप में आप टिक मार्क करेंगे, तो ये फैक्ट ही है, जो सच्चाई है वही जनरली यहाँ पे आती है। उसके बाद आते हैं आपके चेकलिस्ट के क्वेश्चन। ये ऑनलाइन शॉपिंग को लेके मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ऑनलाइन जब जाते हो शॉपिंग करने के लिए किसी वेबसाइट पे, तो आप कौन से प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें कैटेगरीज दे दी है, कॉस्मेटिक्स है, एक्सेसरीज है, बुक्स, मैगजीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब कैटेगरीज दी है। तो आप इसमें से कौन सा प्रोडक्ट परचेस करते हो? तो देर आर वेरी चांसेस कि कस्टमर एक से ज़्यादा टिक मार्क करे। जैसे मुझे खुद को करना है तो मैं बुक्स, मैगजीन्स, उसके साथ साथ अप्लायंसेस, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एक्सेसरीज। यानी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक से ज़्यादा टिक मार्क कर रहा हूँ। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को हम चेकलिस्ट क्वेश्चंस कहते हैं। और फिर आखिरी कैटेगरी है आपके स्केल्स, जो क्लोज एंडेड के प्रकार है। स्केल्स अलग अलग प्रकार की होती है, कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव स्केल, इसका एक अलग से 1.5 घंटे का मेरा सेशन रहता है, और मैं क्विकली आपको ब्रीफली बता देता हूँ। आप जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये आपकी रेटिंग स्केल है, 1 to 10 में आप रेटिंग करने के लिए बोल रहे हो। जैसे फीडबैक, कि जैसे प्रीति मैडम आपको पूछ रहे कि मेरा लिंगे सर का सेशन आज का आपको कैसे लगा, ओके, ओवरऑल इफ सपोज, तो वेरी बैड के लिए 1 मार्क और वेरी गुड के लिए 10, तो आपको रेट करना है इसमें। तो इफ सपोज आप बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेस्पोंडेंट टू रेस्पोंडेंट ये टिक मार्क बदलते जाएंगे शायद, पर ये स्केल क्वेश्चन है जिसको लीनियर स्केल कहा जाता है, या इनको हम आइटमाइज रेटिंग स्केल्स भी कहते हैं। उसके बाद है आपके ये पुअर, फेयर, वेरी गुड, गुड, एक्सलेंट वगैरह, जो आइटमाइज रेटिंग स्केल का ही एग्जाम्पल है। ये लिकर्ट स्केल जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो है, ये भी आइटमाइज रेटिंग स्केल का ही एग्जाम्पल है। ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट पे आप रेटिंग ले रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर जो शॉप है उसकी सर्विस कैसे लगी, वहाँ का क्लीनलीनेस, वहाँ की पार्किंग की फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ फूड, चॉइस ऑफ फूड यानी मेनू, जो रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये है आइटमाइज रेटिंग स्केल। उसके बाद इस प्रकार के बाइपोलर स्केल इसको कहते हैं, या इसको सिमेंटिक डिफरेंशियल भी कहते हैं एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एट फन एंड फूड विलेज, तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस को डिफाइन कर लिया है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, अनएक्साइटिंग, एक्साइटिंग, बैड, गुड, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, चीप, एक्सपेंसिव, सेफ, डेंजरस। और ये 5 पॉइंट पे आप रेटिंग करने के लिए कह रहे हो, और ये लो रेटिंग है। जैसे आप यहाँ पे ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है कि अनएक्साइटिंग, यहाँ तक अनएक्साइटिंग है, और इस तरफ एक्साइटिंग बढ़ते जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इन हो रहा होगा तो यहाँ पे टिक मार्क करेगा वो। उसके बाद आती है पेयर्ड कंपैरिजंस के लिए, बहुत रेयरली यूज होती है, और आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज को आपको रेट करना है कि सबसे पॉपुलर ऑनलाइन वेब शॉपिंग साइट कौन सी है, दूसरी कौन सी है। तो आपने सपोज 4 शॉपिंग साइट आइडेंटिफाई कर ली हैं, और आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी। तो आप एक टाइम पे दो ही प्रोवाइड कर रहे हो आपके रेस्पोंडेंट को, अमेजोन और ईबे। आप बोल रहे हो कि दो में से सबसे पसंदीदा कौन सी, तो इफ सपोज मैं बोल रहा हूँ अमेजोन, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ईबे और तीसरी साइट, तो मुझे लग रहा है कि ईबे में ज़्यादा प्रेफर करूंगा ये दोनों में से। इस तरीके से हम रेस्पोंडेंट को बोल रहे हैं कि एक टाइम पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, जो 4 टोटल अंडर कंसिडरेशन है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके, और यहाँ से फिर इसका ऑर्डिनल रेटिंग यानी रैंकिंग निकलता है, जो पॉपुलैरिटी और प्रेफरेंसेस मेजर करने के लिए हम लोग जनरली इस प्रकार की स्केल यूज करते हैं। बाद में नेक्स्ट गाइडलाइन में हम लोग जा रहे हैं डोंट्स ऑफ क्वेश्चनर डिजाइनिंग, जिसमें
पहले बात कर रहे हैं हम लोग ट्राई टू अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस यानी ऐसे क्वेश्चंस कि जहाँ पे आप रिस्पोंडेंट को क्लू दे रहे हो कि मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये 3 चॉइसेस दिए हैं और आप चाहते हो कि रिस्पोंडेंट ने 3 में से किसी एक पे ही टिक मार्क कर लेना चाहिए, यानी कि आप सबटली इंडिकेट कर रहे हो या क्लू दे रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि आप आंसर यही दे, उसकी हिंट आप क्वेश्चन में दे रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है एंड वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस लीडिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। डू यू थिंक दैट वर्किंग मदर शुड बाय रेडी टू ईट फूड व्हेन दैट माइट कंटेन सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स? तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोई भी मम्मी यस बोलेगी। यहाँ पे जवाब नो ही आएगा, कोई भी इसका रेस्पोंडेंट नो ही जवाब देगा। बाद में ट्राई टू अवॉइड लोडेड क्वेश्चन। लोडेड का मतलब है सेंसिटिव इश्यूज को जो कैटर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि जैसे अल्कोहलिक लोगों का सर्वे करना है या फिर अल्कोहल को लेके कुछ आपको सर्वे करना है, आपकी हैबिट्स को लेके, ड्रिंकिंग हैबिट्स को लेके। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्वाभाविक है, पर ये थोड़ा सा ऑफेंडिंग सा लगता है। ऐसे क्वेश्चन को लोडेड क्वेश्चंस, जैसे आपने शादी करते वक्त डाउरी ले ली थी क्या? ऐसे कुछ क्वेश्चंस है कि जैसे हाल ही में मेरे पास एक क्वेश्चनर आया था इसके लिए, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग के लिए, और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था वो मैडम ने कि वो कुछ मदर्स को लेके था। तो उन्होंने पूछा था कि आपने कभी अबॉर्शन किया है क्या? ऑफेंडिंग लगता है ना, कोई भी अगर किया भी होगा थोड़ी ना वहाँ पे वो सबके सामने जवाब देगा कि हाँ मैंने अबॉर्शन किया था और मैंने वो क्या बोलते प्री नाटल टेस्ट कराई है क्या, ना कि गर्भलिंग निदान जिसको कहते हैं, कौन ये सब ओपनली बताना चाहेगा ना। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस को हम लोडेड क्वेश्चंस कहते हैं। इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से पूछना होता है। देन ट्राई टू अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चंस एज वेल। डबल बैरल का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन में दो इश्यूज को एड्रेस करना, जिसको डबल बैरल। जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे प्लीज रेट द लेक्चर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ये पूछ रहे हैं और एक ही क्वेश्चन में दो चीजें दी हैं, एक कंटेंट और प्रेजेंटेशन, और आपने यहाँ पे 1 to 5 में रेट करने के लिए कहा है। तो ऑब्वियसली ये रेटिंग जो है 1 to 5 की ये दोनों के लिए सेम हो जाएगी। मैं अगर 2 करता हूँ यहाँ पे टिक मार्क, तो ये मेरा लेक्चर का रेटिंग भी 2 ही हो गया और कंटेंट का रेटिंग भी 2 ही हो गया। तो इसको आपको स्प्लिट करना होगा ना, कि एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल को एड्रेस नहीं करते, जिसको डबल बैरल कहते हैं, और ये होता है। हाल ही में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो पीएटी का ही बंदा था, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं, एडमिट होते हैं, उनका कुछ सर्वे कर रहा था। और उसमें ये क्वेश्चन पूछा था उसने पेशेंट्स को, जो मेरे पास क्वेश्चन आया था करेक्शन में, कि नर्सेस और डॉक्टर का बर्ताव आपके प्रति कैसा है? और उसमें फिर से अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, एवरेज, ऐसे कुछ रेटिंग दिए थे। अभी इसमें दो चीजें आ गई ना, डॉक्टर भी आ गई, नर्स भी आ गई। यानी बुरा है तो फिर वो दोनों के लिए लागू हो गया ना, डॉक्टर भी बुरा है और नर्स भी बुरी है, ऐसा थोड़ी ना होता। देर इज वेरी पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर बहुत अच्छा हो और नर्स का बर्ताव अच्छा नहीं हो, या फिर उल्टा हो सकता है, नर्स बहुत अच्छा बर्ताव कर रही हो, डॉक्टर अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को डबल बैरल कहते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसको स्प्लिट करना होगा ना, कि रेटिंग करनी है। जैसे कंटेंट के लिए आप 1 to 10 में अलग से बोल सकते हो और प्रेजेंटेशन के लिए अलग से, वैसे ही नर्स के लिए अलग से रखेंगे और डॉक्टर के लिए अलग से। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसको समराइज कर लेते हैं। ये स्टेप्स मैंने आपको समझाई है क्वेश्चन डिजाइन करते वक्त। सबसे पहले हम डेटा रिक्वायरमेंट एसेस करते हैं, उसके लिए हम लोगों को वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स पे काम करना होता है, और इसके क्लूज हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस और टाइटल से मिल जाते हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स को मेजर कैसे करते हैं, जिसके लिए हम स्टैंडर्डाइज स्केल्स को ढूंढना हो या फिर लिटरेचर रिव्यू करना हो, ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर हम इंफॉर्मेशन नीड चार्ट बनाते हैं, जिसमें रिसर्च क्वेश्चंस, हमारी थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं, हम हमारे वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर देते हैं, हम हमारी टारगेट पॉपुलेशन को जानना शुरू कर देते हैं, कितने क्वेश्चनर के सेट बनाने हैं वो डिसाइड हो जाता है। उसके बाद फिर हम वर्कआउट करते हैं कि वेरिएबल्स वगैरह सब तो हो चुके हैं, उसका ड्राफ्ट कैसे बनाना है, कौन से क्वेश्चन का टाइप यूज़ करना है, कहाँ लिकर्ट स्केल यूज़ करनी है, कहाँ आपको रेटिंग स्केल यूज़ करनी है 1 to 10 वाली, या फिर कहाँ आपको एमसीक्यूज यूज़ करने हैं,
कहाँ आपको डाइकोटोमस, कहाँ चेकलिस्ट करने हैं, है ना, कहाँ ओपन एंडेड टेक्स्ट रखते हैं, ये सब डिसीजंस हम यहाँ लेते हैं। और उसके बाद फिर हम एक लेआउट तैयार करेंगे, और लेआउट में फिर हमने जो डेटा बैंक यहाँ पे तैयार की है उसमें से क्वेश्चन ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। और सबसे आखिरी स्टेप है वो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, यानी क्या आपने जो क्वेश्चनर बनाया हुआ है वो किसी प्रोफेशनल से चेक करा लेंगे। और इसी चीज़ को तो एक्चुअली रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं ना, जो मैं अभी बात कर ही रहा हूँ, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चनर डिजाइनिंग को लेके जो इनपुट है वो खत्म होते हैं। तो क्वेश्चन डिजाइनिंग को लेके कुछ क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और अभी एक आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। प्रीति मैडम, हाँ सर. यांना काही क्वेश्चन्स असतील तर क्वेश्चन्स घेऊन घेऊ आणि मग ब्रेक घेऊन आपण नवीन टॉपिक सुरू करू. हो सर, चालेल. फ्रेंड्स, आपको कुछ क्वेरी है यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल टेक 5 to 10 minutes ब्रेक. कुछ डाउट है? यस और नो? नो मॅम. ओके. जी सर, 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा. हो ठीक आहे मॅडम. ठीक आहे सर. ओके. ओके.